Okay. And what is the good quality of an entrepreneur? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, roll number 34. Naman. Ma'am, a good quality of entrepreneur is leadership, innovative, risk taker, responsibility taker, knowledgeable, and many more. Okay. Who is going to tell me about difference between entrepreneur and manager? Ma'am, what? Entrepreneur and manager. Who is going to tell me about entrepreneur and manager difference? Entrepreneur और manager का क्या difference होता है? Raise your hand. Yes, Anugrah. मैम इंटरप्रेन्योर और मैनेजर में एक ये डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। जो मैनेजर होता है उसको रिस्क बिल्कुल नहीं होता है और इंटरप्रेन्योर को उसके ऊपर पूरा रिस्क होता है, मतलब हाई रिस्क और लो रिस्क होता है मैम यहाँ पे। फिर मैनेजर के पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जबकि आपका इंटरप्रेन्योर हो गया वो अपना ओनर खुद होता है मैम। फिर आप यहाँ पे एक और चीज गौर कर सकते हो, जैसे मैनेजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो किसी को रिप्लाई करे, मतलब उसके ऊपर भी कोई होता है, लेकिन यहाँ पर ओनर के पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसको किसी और को रिप्लाई करे। उसको अकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है बेटा, अकाउंटेबल। यस मैम। और मैम 2-3 पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा, जस्ट मिस हो गया। ओके ठीक है, कौन बताएगा मुझे शॉम्फिटर की थ्योरी? शॉम्फिटर की थ्योरी मुझे कौन बताएगा? यस सोनम, रोल नंबर 30। Ma'am, Sumter focuses on innovation. According to him, entrepreneur is not just a businessman, but someone who experiment with new combination, like new product, new method, new sources, through innovation and creativity to produce new profitable business opportunities for entrepreneurship and sustainable economic development. According to him, there is profit and loss. He defined profit in initial stage. If we incur whatever the rate of production, then it's profit for us, and if we not incur that cost of production, then that's loss for us. And creative destruction, which is the first ladder of success. He taken it as positive. And then government policies should be liberal, and competition. According to Sumter, it's not necessary that how many organizations are existing in the market, but how easily any organization can enter into the market. ठीक है, okay, good. What is the meaning of creative destruction, Sonam? Sonam, what is the meaning of creative destruction? Ma'am, reap award something that after destruction give knowledge about. The creative destruction means if you are innovating something, right, definitely that is not sure that we are going to succeed in that, right? We are not going to succeed in that. Maybe we'll fail multiple times, we'll fail, but we're going to understand the new knowledge, we have awareness about the things, that how we failed, why, what mistakes we did, right? So all these things comes from them. Or Sonam kya bol raha? And we learn from that destructions. Exactly. Okay, that is known as creative destruction. Whatever you create, that is destructed, but you don't need to demotivate yourself. You don't need to consider yourself as a failure, but you have to learn the new things from that fail.
कहा जाता है ना कि जब आप कुछ चीज हारते हो, तो जब आप उस चीज को हार करके अपने आप को हारा हुआ मान लेते हो, तो आपकी हार तब होती है। एक्चुअल में यू डोंट नीड टू कंसिडर योरसेल्फ एज अ फेलियर, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि why you failed and what mistake you did and what you need to not to do the next time, what you not to do the next time when you are creating something new. That is the thing, that is the known as the creative destruction. How many of you are saw that teachers? How many of you are saw teachers? आ रहा है मुझे. Who is going to tell me about the Peters Drucker theory? Peter Drucker's theory कौन बताएगा मुझे? Yes, Sonam. Batch 2, roll number 22. Yes, ma'am. Ma'am, Peter Drucker theory, ma'am, ये आपने ये 7 sources of innovation पर based था. First था the unexpected, मतलब unseen opportunity, problem, success, failure, ये सब इसमें आता है. And second था innovation based on needs, wants, desire and expectation. Anyone else who is going to tell me about the Peters Drucker theory? मैम ये जो होता है पीटर ड्रकर का जो Okay. Yes, Anugrah. मैम ये 7 सोर्स पे बेस्ड था, जो कि एंटरप्रेन्योर इनोवेशन अपॉर्चुनिटी को मतलब डिनोट करता है. इसमें फर्स्ट जो पॉइंट हो जाता है द अनएक्सपेक्टेड, मतलब अगर आगे फ्यूचर में चल के अगर बिजनेस को कोई प्रॉब्लम होने की वजह से बिजनेस ठप हो जाता है, उसके बाद जैसे हम लोग क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन अभी पढ़ चुके हैं, वहां से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से हम लोग कुछ सीखते हैं और फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. आपके सामने कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू सम आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू चेंज और समथिंग. ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस या अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट की वजह से भी आप कई बार कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ नया चीज सीखते हैं, राइट? तो दैट इज नोन एज अनएक्सपेक्टेड. सबसे पहले जो पूरा थीम है ना किसी भी थ्योरी का, उसको समझना जरूरी है. पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनोवेशन के सोर्सेस के बारे में बात किया है पीटर ड्रकर ने. दैट हाउ मेनी सोर्सेस from where you will get the various ideas about the innovations. Yes, Anugrah, you can continue now. मैम उसके बाद आता है हम लोग का द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, वहां पे हम लोग अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है और उसमें हम लोग कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एडिशनल उसमें करके हम लोग इसमें सीखते हैं. मैम इसको इस पॉइंट को हम लोग द इनक्यूरिटी कहते हैं मैम. द इनक्वेरिटी ऐसा कुछ नाम है मैम. इनकंग्रुइटी. और उसके बाद मैम हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है इनोवेशन बेस्ड ऑन नीड. मतलब कंज्यूमर के नीड्स पे ही हम लोग का इनोवेशन डिपेंड करता है. आज हम लोग को कोई नीड मतलब कोई भी चीज के जरूरत हुई, उसी के बेसिस पे आगे चल के मैम उस पे हम लोग इनोवेशन करते हैं ताकि वो हम लोग के लिए जैसे प्रॉब्लम है लोग के लिए ना हो. तो यहाँ पे मैम इनोवेशन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कंज्यूमर की नीड्स का कि आजकल द मोस्ट पीपल आर डूइंग जॉब, राइट? सारे लोग जॉब करते हैं, आइदर दैट इज वुमेन और मेन, सारे जॉब करते हैं एंड दे हैव नो टाइम टू गो टू परचेज द वेरियस प्रोडक्ट्स या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए खरीदने के लिए दे डोंट हैव टाइम. सो व्हाट दे आर प्रेफरिंग द ऑनलाइन मोड. एंड देखिए खाने पीने को लेकर अगर हम देखें तो जोमैटो, स्विगी सारी क्या एक तरीके का इनोवेशन ही तो है ना अनुग्रह? और कुछ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग मोर? बोलिए अनुग्रह. मैम 2-3 पॉइंट्स रिमेन, दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर. मैम जैसे अगर मार्केट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो वहां पे हमेशा टेक्निकल चेंज होते रहता है. तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर को ये एक तरीके से हमेशा तैयार रहना चाहिए इन चेंज के लिए. अब अकॉर्डिंग टू अगर मार्केट में मान लीजिए टेक्निकल चेंज आता है तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करो और पहले से ही अपने लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये स्कीम बना के रखो ताकि वहां से आप मूव कर सको जल्दी से जल्दी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सको. और इसके बाद आता है मैम डेमोग्राफिक चेंज. जैसे जेंडर, इनकम के
टाइप के जैसे हो गए, तो मैम उसके हिसाब से भी आपको वो प्रोडक्ट में इनहांस या उसको करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। आपका जैसे मार्केट है मैम, वहाँ पे इनकम अगर ज्यादा हुआ तो वहाँ पे आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्रोवाइड करने होंगे। आपको अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स रख के वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है। अब मैम यहाँ पे था अकॉर्डिंग टू न्यू नॉलेज, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है तो अपना एक नया कंसेप्ट लेकर आता है, एक नया तरीका से वो मार्केट में इंटर करता है, ताकि वो मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करवा सके। तो मैम दैट 6 पॉइंट 1 पॉइंट था अकॉर्डिंग टू परसेप्शन। मतलब एक होता है पहले से लोगों का धारणा बना हुआ है कि ऐसा प्रोडक्ट आएगा तो ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसके बेसिस पे भी बोल सकते हैं मैम। मैम अभी और याद नहीं है जस्ट। ओके, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? Who is going to tell me about it? Raise your hand. One. यस मैम। मैम मोटिवेशन एक इंटरनल अर्ज है जिससे एक एंटरप्रेन्योर को ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एंटरप्रेन्योर बनने का। फैक्टर्स मैम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में मैम influenced by others, resources, demand and supply, and government policy. And internal need of self-actualization, social needs, and psychological needs. Okay. Anyone else who want to add on something more in this? Good, Naman. Yes, Nandini. मैम एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, और मैनेजर होता है जो एक कंपनी के अंडर काम करता है। मैनेजर का सैलरी होता है वो फिक्स्ड होता है, एंटरप्रेन्योर का फिक्स्ड नहीं होता है। और एंटरप्रेन्योर होता है उसमें हाई रिस्क होता है, और मैनेजर होता है वो लो रिस्क होता है। Intrapreneur और entrepreneur का डिफरेंस? एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद का रिसोर्स यूज करता है, और एंटरप्रेन्योर होता है वो जो कंपनी का रिसोर्स यूज करता है। दोनों में एक सिमिलैरिटी, इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में एक सिमिलैरिटी। किसी को पता है व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर? यस नमन। मैम इंटरप्रेन्योर मैम खुद का वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनोवेटिव आइडियाज के लिए, और इंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है इनोवेटिव आइडिया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचने के लिए। सो इनोवेशन दोनों में कॉमन है। वेरी गुड, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट EDII. यस, EDII, Entrepreneurial Development Institute of India. What was that, when it was established, and what are the various functions of EDII? Who is going to tell me about it? Who is going to tell me about EDII? Entrepreneurial Development Institute of India. Yes, Anu, batch 2, roll number 45. Ma'am, am I audible? Yes. Ma'am, EDII is the full form of EDII is Entrepreneur Development Institute of India, and it was established in 1983 at Gujarat, and it was sponsored by various banks like SBI Bank, ICICI Bank, and many more. And their mission was to facilitate standard education for the future entrepreneurs. And excuse me, ma'am. Ma'am, there is a little distribution at background, ma'am. Okay. Who is going to tell me next? Yes, Anu, boliye. Okay. Yeah, that is totally fine. Ma'am, Boliye. can I add something? Anu, aap boliye. Anu, aap Ma'am, can boliye. I add something more? Yeah. Yeah, ma'am, am I audible? Yes. Hello.
Yeah, Yes, you are ma'am, audible. ma'am, Hmm. their aim is to, ma'am, as I already mentioned, that their aim is to give standard education for the entrepreneurs, and their aim are also to ready a competent entrepreneurs by training. They also give, and their aim are also to break the misconception of various people who think that only good Jews are made for the entrepreneurs. Okay, good Anu, good. Anyone else who is going to tell me about? Ma'am, there is a little distribution. Yeah, that Sorry, is ma'am. totally fine. That is okay. That is okay. I understand that. Basically a government scheme and which इसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बना बनाकर लोन्स दिए जाते हैं। जैसे कि न्यू एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, स्वीपर्स हो गए या अदर कम्युनिटीज हो गए, जैसे ओबीसी हो गई या शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, उनको भी अलग अलग तरह से लोन्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू इसमें। और इसका टेन्योर 10 ईयर्स का होता है और 5 ईयर्स का भी होता है। लोन के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि क्या टेन्योर होगा। मेजॉरिटी टेन्योर 10 इयर्स का ही है बेटा, 5 इयर्स का कौन सा टेन्योर है? यस मैम, 5 इयर्स का मैम एक था जिसमें एससी को जब लोन मिल रहा था, शेड्यूल कास्ट को, तो उनमें उनको 5 लाख तक का ही लोन मिल रहा था, तो वो 5 ईयर का था। ऐसे तो शेड्यूल कास्ट के लिए आई गेस लोन का जो अमाउंट है दैट इज अराउंड 25 और 30 लाख। लेकिन ये जो आप बता रहे हो 30 लाख मैम हाँ, फिजिकली डिसेबल। अच्छा, एंड डीआईसी इज अ स्कीम और दैट इज अ सेंटर? DIC is center ma'am, not a scheme, center. Okay, and it It's was an established organization. Yeah, it was Established in 1978 on yes. the Yes, that was the act was of 1977 and it was established in 1978. And what are the basic functions of DICs? basic functions ma'am, trade fair, promoting trade fair, supporting new entrepreneurs, give training to them, etc. Okay, so DICs the basically देखिए ज्यादातर सबका एक ही aim है जो so majority of the entrepreneur centers and institutes we are getting the entrepreneurs are getting the trainings, right? So हमेशा training वाला term and the loan वाला term, but the DIC is based on the district level, that is based on the district level. So they are basically promoting the rural entrepreneur as well as those community which are the marginalized. So basically for them they make some particular centers, or we can say the particular different theme for everyone, like the Safai Karamchari, there are the different sector for them, scheduled caste, OBC, and for the professionals also they are providing loan to these people, right? So यहाँ पर जो tenure है majority that is 10 years और जो amount है that is differ, like amount differ कर रहा है हर एक community के लिए, तो उसको एक बार remind रखिएगा। और जितने भी आप कभी भी फीचर्स लिखते हैं, whenever you are writing the features always add on the training program, क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते NIESBUD की तरफ। लिखिए NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल डेवलपमेंट, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट। अभी मैं सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विच आर बेसिकली made for providing the training and courses for the entrepreneurs. In earlier classes we discussed about the EDII, that was the first one, and the second one is NIESBUD, National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development, NIESBUD। ठीक है, नाइस वर्ड भी याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत है लर्न करने में तो यू कैन लर्न इट एज अ नाइस वर्ड, बट स्पेलिंग याद रखिएगा, वहां नाइस NICE वाला मत लगाइएगा, नाइस यहाँ पर क्या है NIES वाला, नाइस बर्ड BUD, और बर्ड BIRD नहीं, बर्ड यानी कि जो कली होता है, दैट इज उसको हम लोग इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं। लाइक लर्न इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब मैं NIESBUD की बात करूं तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 सेम एज इट इज EDII। 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली ये कहाँ पर है? नोएडा में है। और इसमें क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है? यहाँ पर ये सबसे पहले याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। पर ये कहाँ पर है? नोएडा में है। इट इज इन नोएडा। नोएडा यानी मतलब यूपी में आता है ये, लेकिन इसका जो बेसिकली दिल्ली भी बोल सकते हैं, दिल्ली के एरिया में, ये एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर में। यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका जो मेजर एक्टिविटी क्या है, ये क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो इसमें लिखिए द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट आर, यानी जो मेजर एक्टिविटीज है NISBUD का, मेजर एक्टिविटीज क्या क्या है ये क्या प्रोवाइड करता है? एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स का मतलब क्या है? जो एंटरप्रेन्योर्स को वेरियस बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, तो ट्रेनर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, लाइक ट्रेनिंग ट्रेनर्स के लिए हु आर गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग टू द अदर पीपल एंड एंटरप्रेन्योर, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। लिखिएगा ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ठीक है। एक सेकंड क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट लिखिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ये प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है कि इफ यू विल बिकम अ मैनेजर इन एनी प्लेस और मे बी being an entrepreneur, you are also a manager of that particular company, right? Because in entrepreneur there is a no superior and subordinate relationship, but there is basically a management, right? एक proper management जरूरी है। So how you will make the policies, how you will take the decision in your company, in your when you will start it, how you will manage everything, either that is related with the employee, either that is related with the product, or either that is related with the services, that is known as management. तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बताता है आइदर योर आइडिया इज वेरी गुड, यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी इनोवेटिव, everything is fine, but if you are not able to manage it, if you are not able to make the policies, if you are not able to take decision, that is not going to work, right? So management development program is also a very important program for entrepreneur, so they are also providing the management development programs, right? Next, ye some international training is also provided under NISBUD, some international training programs, international training programs का मतलब है कि they are basically collaborating and coordinating with some international institutes of the entrepreneurs, and they are providing the other countries people or the other countries entrepreneur institutes, they are providing the basically programs and training programs to the people who are basically in NISBUD, right? So basically some international training program is also done, ठीक है। और ये इसका जो वही मेजर एक्टिविटीज जो है, ये सारे तो ये एक्टिविटीज करते हैं, और कुछ मेजर एक्टिविटीज में यू कैन राइट वही मेजर ट्रेनिंग ही है। सेकेंड, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन स्टडीज वगैरह कराता है, जैसे रिसर्च का मतलब समझ रहे हो कि they are doing the entrepreneur need to do multiple research, either for the marketing के लिए रिसर्च करेंगे about the market shares, about the competitive level, about the market demand, about the consumer behavior. There are so many kind of research is done in basically marketing, right? So they are basically providing the research and evaluation training as well, ki how you will evaluate the market if you are going to start a new business, right? So they are also providing the research and evaluation studies. तो ये रिसर्च एंड इवैल्यूएशन स्टडीज भी कौन प्रोवाइड करता है? NISBUD, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन स्टडीज, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च करने के लिए नहीं सिखाएगा, साथ साथ में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अवेयरनेस भी बताएगा। They will tell you about the incentives, they are going to tell you about the subsidies, how you will take the benefits of the government scheme, how you will research the market, how you will evaluate, how you will do the comparative analysis of whole market,
and you can also do the comparative analysis of your service and product with the other service and product, right? The whatever is present in the market, uske sath bhi comparative analysis, evaluation, market research, awareness about the government scheme, ये सारा का सारा आपको कौन बताएगा? NIESBUD, राइट? कोई अगर स्किल डेवलपमेंट या पोटेंशियल सर्वे करना भी सिखाएगा, वो आपके रिसर्च का ही पार्ट है। सर्वे, सर्वे समझते हो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वे? एवरीवन, सर्वे क्या होता है? क्लियर है किसी को? जानते हो कोई? रेज योर हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वे? रेज योर हैंड। यस विक्रम। मैम गणना करना मैम, जैसे मैम कोई भी चीज मैम पॉपुलेशन का सर्वे होता है और मैम वही सब चीज गवर्नमेंट सर्वे करवाती है ताकि पता चले कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है या फिर। ओके ठीक है, ओके विक्रम। अनुग्रह। सर्वे उसको कर सकते हैं जैसे किसी भी प्राइमरी सोर्स के ऊपर डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं कहीं पे भी, अगर तो प्राइमरी पे जो बेस्ड होता है, मतलब उस फर्स्ट है 100 डाटा होता है मैम, जो कि अपने से जाके लोग कलेक्ट करते हैं और वो इंडिविजुअल तक पहुंचता है मैम, मतलब हर एक इंसान तक पहुंचता है, वहां से डाटा कलेक्ट होता है, उसके बाद ये ऊपर की ओर गवर्नमेंट के पास जाता है या किसी भी तरीके से हम लोग उसका यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं मैम। ठीक है, गुड। सो what is the meaning of survey? Survey is a kind of research where we are collecting the information from the local people, और जैसे मान लीजिए मुझे बिहार का सर्वे करना है, we can do survey in a multiple ways, like हमने कुछ ग्रुप्स बना लिया, लोगों का ग्रुप बना लिया, ये एक इलाका चूज कर लिया and we are doing the survey. तो survey is a kind of collecting the information, like अगर हम सर्वे का एग्जाम्पल ले तो कई बार आप जैसे ट्रायल, आप कभी भी मार्केट में गए, यू विल गेट सम प्रोडक्ट्स एंड वो आपको कहते हैं मैम प्लीज आप ट्राई करके देखिए, राइट? तो एंड प्लीज गिव मी द फीडबैक एंड ऑल। एंड सर्वे इज समथिंग जो हम मास पॉपुलेशन में करते हैं। सर्वे वो होता है जहां मास पॉपुलेशन में हम करते हैं और कुछ आइडिया उससे जनरेट करते हैं कि लोगों का क्या मार्केट में डिमांड है। अगर हम मार्केट का सर्वे कर रहे हैं तो लोगों से हम पूछताछ करेंगे कि ये प्रोडक्ट के बारे में आप क्या है, अगर आपको सोप यूज करना है तो आप कौन सा प्रेफर करते हैं। तो लाइक दिस काइंड ऑफ सर्वे, दैट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चनियर्स, हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो यार रिसर्च एंड इवैल्यूएशन स्टडीज में ना सिर्फ वो आपको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अवेयर करेंगे, मार्केट रिसर्च, बल्कि आप एक सर्वे करने का टेक्निक्स भी बताएंगे कि आप किस तरीके से मार्केट में सर्वे कर सकते हैं, ठीक है? और आपको ये बेसिकली सर्वे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च का टूल है ये, ठीक है? रिव्यू करना, इवैल्यूएशन करना, ये सारी चीजें आपको NIESBUD में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट में यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम्स भी चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स की यहाँ सुविधा है आपके, ठीक है? मैनेजमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप या PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका, MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, so there are various programs which is organized under the NIESBUD, यानी NIESBUD के अंडर में आपके बहुत सारे करिकुलम और सिलेबस और प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये कुछ क्लस्टर इंटरवेंशन में भी काम करते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है किस चीज में, डेवलपमेंटल प्रोग्राम में, लाइक सॉफ्ट एंड हार्ड इंटरवेंशन इन द क्लस्टर इन डिफरेंट कैपेसिटी। और इंस्टीट्यूट जो है टोटल 24 इंडस्ट्रियल क्लस्टर का हैंडल करता है, यानी कि इंडस्ट्रीज में भी ये इंटरवेन करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी ये बेसिकली प्रोग्राम्स वगैरह, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है? बेसिक लेवल, एक ग्राउंड लेवल पे, ठीक है? और एक चीज और, अभी रिसेंटली कुछ आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे स्टार्टेड द EEDP प्रोग्राम एज वेल। EEDP का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। So they are also providing the online and the electronic learning module, यानी ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मॉड्यूल्स वगैरह भी इनके हैं। तो यहाँ पर ये EEDP प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाते हैं। EEDP प्रोग्राम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑनलाइन चलता है, ठीक है? तो ये EEDP प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और NIESBUD का साइट, ADII का साइट, ये सब चेक करते रहिए। यहाँ पर बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार भी चलते हैं। इफ यू वांट टू डू दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत का भी अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा था, चल रहा था उसमें प्रोग्राम, ठीक है? या फिर कभी भी आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट करके कुछ आपका ये है जो आपका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका भी साइट कभी ओपन कीजिएगा ना, यू विल गेट वेरियस ऑफ वेबिनार्स ऑन पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योर, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो कुछ मेजर एक्टिविटीज इसके यही थे, और कुछ बेसिकली ऑनलाइन लिख सकते हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम इज देयर, और ऑनलाइन ईडीपी प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। और इसका मतलब जो बेसिकली ये जो मैंने बताया NIESBUD, ये थोड़ा इंटरनेशनल एक्टिविटीज में भी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। लाइक ये बहुत सारे मिनिस्ट्री फेलोशिप मिलता है यहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में। ये जो है बेसिकली NIESBUD मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में फेलोशिप कराता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। कई बार वो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करवाता है, ITES प्रोग्राम वगैरह जो है, ये सारे इंटरनेशनल एक्टिविटीज और एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और कुछ कई बार कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी काम करता है, जैसे MSME को कभी कोई कंसल्ट चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए अगर कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह चाहिए, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी NIESBUD पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स और एक्टिविटीज थे NIESBUD के, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मैम, NIESBUD का मेजर एक्टिविटीज का काम है एंटरप्रेन्योर को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर जो मैम ट्रेनिंग जो कराते हैं उनको भी, ट्रेनर को भी ये मैम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और मैम इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। एंड मैम ये रिसर्च एंड एवोल्यूशन स्टडी का जैसे अवेयरनेस हो गया बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम का सर्वे में, और फिर कंसल्टेंट MSME को, तो मैम ये सब इसका मेजर एक्टिविटी है वर्क का। एंड यस अंकित, यस ऋषभ, ओके गुड, यस अंकित। मैम क्वेश्चन है मेरा कुछ। हाँ बोलिए। जैसे ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं। और ये कोई टाइम पीरियड भी होता होगा इसका कि इतने पीरियड में कोई ट्रेनिंग चल रहा हो? ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जैसे आप लोग का कभी कोई स्मॉल कोर्स जैसे ब्रिज कोर्स वगैरह चलता है, क्लास हम लोग के कॉलेज में चलता है ना, तो वैसे जैसे 3 मंथ के लिए होता है, 6 मंथ के लिए होता है, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग जो है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कई बार डिपेंड करता है, अगर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा NIESBUD में कुछ लाया गया है अगर, तो उस केस में ऑब्वियसली कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलता है, लेकिन मेजॉरिटी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कोर्सेज के विद इन भी चलता है। जैसे आपने कोई कोर्स पे ज्वाइन किया, फिर आपको साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिल रहा है, ठीक है। पर मेजॉरिटी बहुत मिनिमल कॉस्ट है, हाई कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट यहाँ पर कॉस्ट के साथ ही चलता है, जैसे लाइक 5000 6000 हार्डली कॉस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इट्स टोटली डिपेंड कि अगर आप वहाँ कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको कोर्स के विद इन भी करना है, बट ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्लॉट ही मिले, बिकॉज बहुत रश है, हाई रश है, क्लियर है ना। तो समझ में आ गया। अंकित, यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट NIESBUD, जरा मुझे बताइएगा NIESBUD के बारे में। हाँ मैम, ये बेसिकली एक तरह से मतलब जो इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, खासकर उनके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, और ट्रेनर के लिए, उन ट्रेनर्स के लिए जो एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करते हैं उनके लिए भी। और इसमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, और इसमें ये कुछ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, इंटरनेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैब करके। और इनमें रिसर्च एंड इवेल्युएशन भी होता है, ये सर्वेस भी करवाती हैं, मतलब जो इनके मतलब इनरोलर है, जो इनरोल किए हैं इनमें एंटरप्रेन्योर्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी, उनको ये सर्वेस करवाती है, रिसर्च करवाती है। हाँ ठीक है। और ये क्लस्टर्स वगैरह होता है, उसको भी अपने अंदर हैंडल करती है, 24 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो ये हैंडल करती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए सबको क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि yes, entrepreneur is a very big risk. If you are investing 10 lakh rupees and just think that if you will fail, that is going to एक बार में that you are going to lose that money, right? So if you are going to take the risk, don't afraid of that, but the basic knowledge and skill should be there, right? So इसको enhance करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट, बट अगर मैं बोलूं कि इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, जस्ट गो टू द स्ट्रेट स्टडी एंड जस्ट गो टू द प्रॉपर स्टडी नॉर्म, प्रॉपर स्टडी फाउंडेशन शुड बी देयर, राइट?
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं IIE की तरफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। IIE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, आप लोग की बुक में भी गिवन है, ये पेज नंबर 54 में एक लाइन में गिवन है IIE एट गुवाहाटी, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो IIE है वो कहाँ पर है, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है, गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में, आसाम में। आसाम का क्या है गुवाहाटी? कैपिटल है। तो गुवाहाटी इज मैम आसाम का मैम डिस्ट्रिक्ट है मैम, आसाम का सॉरी मैम, कैपिटल सॉरी। दिसपुर है। आसाम का, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, कैपिटल है। सोनोवाल साहब है चीफ मिनिस्टर वहाँ पे। एग्जैक्टली, वहां पर जो गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी इज अ बेसिकली दैट इज अ वन सिटी, वहां पर एक शहर है गुवाहाटी, राइट। और असम एक ऐसा शहर है जहां से सारे जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर्स, तो वहां से कनेक्टेड है। सारे के सारे असम के थ्रू ही आप लोग जा सकते हैं, कहीं भी अगर नॉर्थ ईस्ट में मूव करना है, यू हैव टू मूव टुवर्ड द विद द हेल्प ऑफ असम। तो गुवाहाटी में इसको स्टैब्लिश किया गया, कौन से साल इसको स्टैब्लिश किया गया? 1993 में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 इन गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में इसको स्टैब्लिश किया गया, और इनको स्टैब्लिश अभी ये फिलहाल किसके अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, अभी तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री था, अब इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अर्लियर इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, नाउ इट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, राइट। तो MSME का जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट, इसका बेसिकली क्या काम है? ये भी सेम ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम, कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करता है, और ये इसको ऑपरेट जो करना शुरू किया गया था, दैट वाज ऑपरेटेड फ्रॉम द 1 अप्रैल 1994। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 बट इट वाज ऑपरेटेड, स्टार्ट ऑपरेटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1994। पहला सेशन 1994 में शुरू हुआ, ठीक है। और किसकी हेल्प से स्टार्ट हुआ? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की हेल्प से, क्योंकि आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो गुवाहाटी जो है, आसाम इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इसको ऑपरेट करना शुरू किया 1 अप्रैल 1994 में, ठीक है। और साथ साथ बहुत सारे लोग भी थे, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे थे इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने शुरू किया था, बस स्टेक होल्डर्स इसमें बहुत सारे थे, जैसे आपका नेशनल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हो गया आपका, फिर गवर्नमेंट ऑफ असम हो गया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, सिडबी, ये सब लोगों ने भी इसमें बहुत अपना स्टेक दिया, मतलब हेल्पफुल थे ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे जो थे मिल करके इसको स्टार्ट किया काइंड ऑफ। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, कहाँ है सिडबी का? लखनऊ। यस, बेसिकली द सिडबी का जो आपका हेडक्वार्टर दैट इज इन लखनऊ, ठीक है। तो जो सिडबी है उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट, सॉरी, जो IIE है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? IIT, IIM नहीं, IIE है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली है प्रमोट और डेवलप करना एंटरप्रेन्योरशिप को। ये रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट ये करवाते हैं, ठीक है। ये कुछ कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करके रखा है इन्होंने किसके साथ? कुछ ट्रेनिंग और रिसर्च इंडस्ट्रीज के साथ, उनके साथ भी काम करते हैं, और ऐसे भी ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनका जो मॉनिटरिंग है, ये प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी एंड मॉनिटरिंग सर्विस टू MSME। ये मॉनिटरिंग और कंसल्टेंसी सर्विस जैसे आपका NIISBUD प्रोवाइड करता है, वैसे ये भी क्या करता है? मॉनिटरिंग और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको? MSME को, ठीक है। और ये प्रमोट करता है किसको? टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन को। ये प्रमोट करता है ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, कि आप उसको किस तरीके से यूज कर सके अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। और ये कुछ बेसिकली ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज वगैरह डिजाइन करता है, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंडिविजुअल्स का इंप्रूव करता है। जैसे काकीनाडा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उनका क्या इंप्रूव किया गया था? स्किल इंप्रूव किया गया था, उनको मोटिवेट किया गया था, राइट। और यहाँ पर एक भी बात बता दूं, काकीनाडा एक्सपेरिमेंट भी बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वगैरह यहाँ पर ये चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंसल्टेंसी सर्विस, एंटरप्रेन्योर्स को भी देते हैं, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी देते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है,
जो existing, they are not in the training period, but they are already, they want to become an entrepreneur, their training program is completed, और कोई outsider entrepreneur है, तो they can also take the help of the IIE. यहाँ से भी उनको क्या मिल सकता है, इनको बेसिकली इनको ये मिल सकता है, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी मिल सकता है, सर्विसेज मिल सकता है, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट योर बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ पूछना है तो, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट जो है ये ऑब्वियसली भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का, और इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस यही है। अगर आप लोगों ने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो IIE के बारे में सबको क्लियर हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सबको क्लियर हो गया। Who is going to tell me about the IIE? Who is going to tell me about it? Who is going to tell me about the IIE? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे कौन बच्चा बताने वाला है? रेज योर हैंड। मैम ये 1993 में स्टार्ट हुआ था गुवाहाटी में, लेकिन ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1994 को, और ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME ऑर्गेनाइज की, और ये मतलब इसको और आगे लेकर चली, और बहुत सारे मतलब ग्रुप के साथ मिलके इसको स्टार्ट किया गया, जैसे CDB हो गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हो गया, उसके हेल्प के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया। और मेनली इसमें ट्रेनिंग एक्टिविटीज दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, और कंसल्टेंसी ग्रुप है ये एक, और ये IT से रिलेटेड है ग्रुप। ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करने के लिए हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर्स को बताता है न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज समथिंग, बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। वेरी गुड मिहिर। एनीवन एल्स हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? सोनम, यस, बैच 2, रोल नंबर 22। यस सोनम। यस मैम। मैम ये एस्टैब्लिश 1993 में हुआ था गुवाहाटी में, और ये कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, और इट इज ऑपरेटेड फॉर इन 1 अप्रैल 1994। और मैम इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट और डेवलपमेंट, रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोग्राम, कोलैबोरेट विद इंडस्ट्री, मॉनिटरिंग एंड कंसल्टेंसी टू MSME, प्रमोट ग्रेटर यूज ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग एक्टिविटी डिजाइन भी करता है मैम। ओके, गुड। सो आई गेस सबको यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, NIMSME। सो NIMSME जो है वो हैदराबाद में है। अर्लियर इसका जो नाम था दैट वाज NISIET। यहाँ पर कुछ हुआ था, क्या हुआ था? यहाँ पर कुछ हुआ था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें हुआ है कुछ। रेज योर हैंड। SIET। Yes, raise your hand. Yes, who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, Sonam. मैम Sonam. यस मैम, काकीनाडा एक्सपेरिमेंट में मैम पहले SI था, उसके बाद NISET हो गया। और अब ये क्या है? ये अब है NIMSME, ठीक है। तो ये बेसिकली हैदराबाद में है। यहाँ पर भी सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हुआ है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज में ये NIMSME जो है ये इंडस्ट्रियल एरियाज के लोगों को या फिर इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादातर ट्रेनिंग और प्रमोशन करता है इंडस्ट्रीज का। तो ये जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है, NIMSME को। और आई थिंक सो कि बस एक नाबार्ड बचा है। तो नाबार्ड के बारे में आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ब्रीफ में थोड़ा सा नाबार्ड बता देती हूँ कि नाबार्ड आखिर क्या है। तो नाबार्ड जो है बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है ये, ठीक है। नाबार्ड लाइक सिडबी की तरह इसको लेकिन एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। इसका एस्टैब्लिशमेंट का रीजन क्या था? इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था बैंकिंग जितने भी सेक्टर्स हैं आपके, जैसे RRB वगैरह जो भी हैं, और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आपके रूरल एरियाज में हैं, उनको बेसिकली मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और नाबार्ड सिर्फ और सिर्फ लोन, पैसे और क्रेडिट का काम नहीं करता है, बल्कि रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट पे भी काम करता है। और गवर्नमेंट स्कीम जो है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, IRDP हो गया आपका, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हो गया आपका, ठीक है,
फिर यूथ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट स्टार्ट करती है उनके साथ ये कोलैबोरेट करके काम करता है, और ट्रेनिंग वगैरह फैसिलिटीज भी रूरल एरियाज में लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम विमेन के लिए भी करता है और ज्यादातर यूथ के लिए भी करता है, क्लियर है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नाबार्ड जो है वो करता है, ठीक है। और साथ साथ में ये मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बैंकिंग एक्टिविटीज, उन पे भी ये काम करता है। तो ये बेसिकली नाबार्ड है, ठीक है। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट के लिए, और साथ साथ में एग्रीकल्चर पे भी ये ध्यान देता है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इनोवेशन, कोई चेंजेस वगैरह लाने हैं रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरिया में लगभग 70% जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में है और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इंडल्ज है। So because of this only, they are also providing the support activities for agriculture. They are also providing the promotion and development of small cottage industries, handicraft industries के लिए, ठीक है। या फिर बाकी की जो आपके एक्टिविटीज हैं जैसे क्राफ्ट्स वगैरह हैं, उनको भी ये क्या करता है, बेसिकली प्रमोट करता है। तो नाबार्ड कहाँ से, मतलब नाबार्ड की शुरुआत कैसे हुई, क्या रीजन था नाबार्ड को लाने का गवर्नमेंट का, और वो अभी क्या क्या फंक्शंस कर रही है, और फिलहाल में उनके अंडर में कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एनीवन हैव एनी डाउट? मैम यस, मैम पिछले दिन क्लास ज्वाइन मैम बलराम